Let us have it that here at Prayagraj, Ganga, Yamuna and Saraswati form a holy confluence. The Pavitra Sangam is what we eat. Ganga and Yamuna are distinctly seen there, but Saraswati is not seen. It simply becomes invisible. Well, what I feel is that bodies of learning, bodies of knowledge and wisdom, Ma Saraswati does not become invisible at all. She finds her flow in such august gatherings through eminent men of letters who have graced our seminar in this auditorium. I welcome you all of sir. We are privileged to have you here, sir. We are also graced by the presence of eminent dignitaries joining us from all over the India and from all other colleges of University of Allahabad. May I take this opportunity to call upon our chief guests and respected guests of honor to kindly lead the line. कश्चित् प्रमाणतः जातः अस्माकं मुख्यातिथिः महोदयः आगे आगच्छन्तः एव सन्ति अतः कस्मिंश्चित् एव क्षणे श्रवणानन्तरम् एषः कार्यक्रमः भविष्यति या महोदयाय उद्घोषितः। धन्यवादः। Thank you. उसी समय महोदय यहाँ पहुँचने वाले हैं। And offer class goddess Saraswati. Shubham Purupam Kalyanam Arogyam Dhanasampada Atma Buddhi Prakashaya Deepat Jyoti Namostute Deepat Jyoti Parabrahma Deepat Jyoti Janardana Deepo Hartuni Papam Tasmai Deepam Namo Namaha. चलना है कैसे अस्माकं प्राचार्यवर्यः प्रोफेसर् अजयकुमार करेमा महोदयः इतोपि पोलेण्ड् देशतः आगतवन्तः डॉक्टर शिवानन्दजी कृपया अधिमञ्चं भवन्तु। इतोपि अस्माकं विशिष्ट इतोपि इंग्लैण्ड् देशतः आगतवत्यः महोदयाः देवप्रसाद महोदयाः भवतां सर्वेषां स्वागतं जायामः। May I request all the esteemed guests to offer flowers on the portrait of the founder of this great institution, Reverend Babu Chaudhary Mahadev Prasad ji. येषां नाम आधृत्य अस्माकं महाविद्यालयस्य नाम चौधरी महादेव प्रसाद इति जातः। तेषां महोदयानां
इदानीं वयम् आगमनं कुर्मः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुक्मरुता स्तुयन्ति देव्यैश्च वै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामुगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। एक बार हम पुनरपि संस्कृत विभाग CMP महाविद्यालय पक्षतः Gana
Principal Sir to kindly present a memento, shawl, sheephead as a token of our gratitude. Sir. सर हाथ लगाइए हम सामने देखिएगा सर थैंक यू सर मैम बता दीजिएगा ठीक है स्टैंड दिया गया रखा
dear honored sir, first of all, I present a brief introduction of our chief guest, Professor Srinivas Vanakiri sir. Sir is now currently serving as Vice Chancellor of Central Sanskrit University, New Delhi from January 12, 2022. He was the Vice Chancellor of Kavikurulu Kalidas Sanskrit University, Gondwana University, Karnataka Sanskrit University. He also served several institutions like IIT, Sanskrit Academy, PG Research Center, Osmania University, and Andhra Pradesh Sanskrit National University. He continues to serve as a member of various academic councils like Ministry of Education, University Grants Commission, NAC, ICPR, IOE, HEI, etc. His contribution towards interdisciplinary studies have acclaimed him several awards, including the prestigious Maharshi Badarayana Vyas Samman. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। महर्षि बादरायण व्यास सम्मान by the President of India in 2007. He has also been honored by his scholar mentors Vidyamanya Tirtha, Vishwesh Tirtha, Vidyashish Tirtha, and also Chinmayanand Gold Medal for his efforts. His works in the field of NLP, Natural Language Processing, and Sanskrit Computational Linguistics, SCL, and Indian Literary Studies in collaboration with the international scholars and institutions are noted by the international technological and academic fraternity. He has edited more than 50 works and published equal number of research papers in English, Sanskrit, and Kannada. The part of proofs, a translation of Black epistemology authored by him, was the first publication of Manipal University Press. He is visitors nominee for Faculty Selection Board in Vishwa Bharati Shanti Niketan University. His profound scholarship and lucid education sought him special invitations from around the globe, Canada, France, USA, Belgium, Sri Lanka, and Thailand. He was directed to France by the Ministry of External Affairs, MPA, Government of India, on the occasion of International Yoga Day. Despite his schedule, Professor Vanakiri continues to nurture his passion in art, reading, writing, composing poetry, and listening to music. We are really lucky to have you here, sir. Thank you so much. गुरुचरणा आचार्य अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय महोदयानां परिचयं कार्यक्रमम् अहं गौरवम् अनुभवामि वस्तुतः। इमे महोदय उत्तराखण्डप्रान्तस्य अल्मोड़ा इति जनपदतः आगत्य इलाहाबाद विश्वविद्यालयतः स्नातकं परास्नातकं च प्रथमश्रेण्यां कृत्वा ध्वनि स्कूल् एण्ड् क्रिटिसिजम् इति विषयमधिकृत्य डिफेल् इति उपाधिं प्राप्तवन्तः। पुनः नवदशाधिक-षट्पञ्चाशत्तमे वर्षे इत्युक्ते 1956 वर्षे संस्कृतविभागे इलाहाबाद विश्वविद्यालये प्रवक्तारूपेण नियुक्तिं प्राप्य पुनः अग्रे आचार्यपदम् अथ च विभागाध्यक्षपदमपि अलङ्कृतवन्तः। इमे महाभागाः नवदशाधिक-पञ्चनवतिः वर्षतः नवदशाधिक-सप्तनवतिः वर्षपर्यन्तं from 1995 to 1997 प्राकृत भाषा साहित्य विभागे पार्श्वनाथ विद्यापीठे वाराणस्याम् आचार्य एवं अध्यक्षपदमपि अलङ्कृतवन्तः। एते महाभागाः भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला मध्ये विजिटिंग प्रोफेसर इति रूपेण कार्यं कुर्वन्तः। इमे इलाहाबाद संग्रहालय अपि च भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला मध्ये फेलो नेशनल फेलो च अपि आसन्। एतेषां महोदयानां निर्देशने 40तः अधिक more than 40 स्टूडेंट्स शोधच्छात्राः एतैः उपाधिं लब्धवन्तः। एतैः महोदयैः
ध्वनि सिद्धांत, कवि और काव्यशास्त्र, नलविलास, अलंकार तत्व, कॉन्सेप्ट ऑफ रसा, with special preference to Abhinav Gupta, कादम्बरी, सौरभम, अलंकार शास्त्र कोश, प्रभृतयः नैकाः ग्रन्थाः लिखिताः। बैङ्काक् देशे आयोजिते अन्ताराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलने इमे महोदयाः भारतसर्वकारस्य प्रतिनिधिरूपेण अपि भागं स्वीकृतवन्तः। संस्कृतक्षेत्रे महोदयानां बहुविधानि कार्याणि अपूर्वं योगदानं च दृष्ट्वैव भारतस्य महामहिम राष्ट्रपतिद्वारा एकाधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे 2001 मध्ये इमे महोदयाः राष्ट्रपति पुरस्कारं लब्धवन्तः। इतोपि संस्कृत महामहोपाध्याय, ज्योतिष रत्न, नैकानां संस्थानां सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर इत्यादयः पुरस्कारान् इमे अलङ्कृतवन्तः। एतादृशानां महोदयानां सान्निध्यं सामीप्यं च प्राप्य वयं वस्तुतः सौभाग्यम् अनुभवामः। महोदयानां भूरिशः स्वागतं च व्याहरामि। अस्माकं सौभाग्यं ये अद्यतन अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवन्तः सन्ति डॉक्टर शिवानंद शास्त्री महाभागाः। भवन्तः चिन्तयन्ति स्युः यत् कथं शिवानन्दः तथा तु न दृश्यते। महोदयाः पोलेण्ड् देशनिवासिनः, मूलनाम फिलिप रुचिस्की, किन्तु कदापि तदा नाम न वदन्ति यतोहि गुरुभिः प्रदत्तं नाम डॉक्टर शिवानंद शास्त्री इति। अतः शिवानंद शास्त्री महोदयैः उक्तं यत् एतेषां प्रथमः विश्वविद्यालयः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः अस्ति, यतः एते सर्वप्रथमं वेदान्तविषयम् अधिकृत्य अध्ययनं कृतवन्तः। द्वितीयक्रमे यः विश्वविद्यालयः महोदयेन यथा तेन उक्तं यत् वार्सा विश्वविद्यालयः, पोलेण्ड् इति देशस्य राजधानी अस्ति वार्सा, तस्य मुख्य यः विश्वविद्यालयः ततः अपि एते अध्ययनं कृतवन्तः। एतेषां PhD शोधकार्यम् अभिनव गुप्त इति विषयं साहित्यविषयम् अधिकृत्य शोधकार्यं कृतवन्तः। इदानीं काश्यां वसन्ति तथा पोलेण्ड् देशं मध्ये मध्ये गमनागमनं चलति। एतैः पोलेण्ड् देशे भारतीय संस्कृतेः प्रचारार्थम् एका संस्था स्थापिता। स्व अनुजेन सह मिलित्वा तस्यां संस्थायां संस्कृतग्रन्थानाम् अनुवादकार्यम् अपि च प्रकाशनकार्यमपि प्रचलति इति महोदयेन उक्तम्। तथैव न कुतः आगतः एषः संस्कारः। एतेषां पितृचरणाः अपि पोलेण्ड् देशमध्ये संस्कृतप्राध्यापकाः सन्ति। एतेषां मातृचरणाः अपि सम्पूर्णसंस्कृतविश्वविद्यालयतः अध्ययनं कृतवत्यः। पुनः एतेषां या संस्था तस्यां प्रकाशनकार्यम् अनुवादकार्यम् इति सर्वं ताः पश्यन्ति। पुनश्च एतेषाम् अनुजः अपि श्री योगानंद शास्त्री इति, पुनरपि नाम मूलनाम अस्ति इस्कर्पी रुचिस्की, किन्तु गुरुभिः प्रदत्तं नाम स्वीकृत्य इदानीं जीवनं प्रचलति। श्री योगानंद शास्त्री अपि सम्पूर्ण विश्वविद्यालयतः एव अधीतवत्यः। सम्पूर्ण एतेषां महोदयानां परिवारे संस्कृतपरिवारः इदानीं भारतदेशे आगत्य निवसन्ति। संस्कृतविषये अहर्निशं शोधकार्यम् इत्यादि कुर्वन्ति। एतेषां महोदयानां स्वागतं कर्तुं वस्तुतः वयं सर्वे अपि सौभाग्यम् अनुभवामः। Now we have another esteemed guest, Dr. Divya Prabhaji. She graduated from Oxford University, UK with a bachelor's and master's with honors and science of materials and started an illustrious career with top American investment
Following life-changing experiences, she left this life behind, embarking on her spiritual journey with her Guru, Brahmarshi Vishwadeva Bhavraji. She has studied Indian culture deeply in Varanasi and draws on the ancient wisdom of the Vedas, Upanishads and the Gita, bringing the light of knowledge into the deep practice of the 8 limbs of yoga in daily life. She is traditionally trained and guided in Maha Yoga, Hatha, Mantra, Daya and Raj Yoga, as well having had a traditional Sanskrit education in Varanasi for the last 16 years, winning the gold medal for the Shastri, BA equivalent course and coming top of her university class during further studies in Prachi Vyakaran on the Acharya course, which is MA equivalent. Completed doing a PhD in Sanskrit grammar and is currently preparing for her next PhD. She has broadcast lectures and taken part in discussions on the radio, TV, online and continues to teach Prachar in India as well as internationally. She is the former Vice Chairperson of World Organization of Students and Youth and is the founder of Kashi Yoga Festival, Avedic Gurukul and International NGOs Mission and International Chandramouli Charitable Trust promoting Sanatana Dharma, Bharatiya Sanskriti and Yoga as a way of life. We are really lucky to have you here. इतोपि अस्माकं मध्ये मञ्चस्थः सन्ति अस्माकं प्राचार्यवर्यः प्रोफेसर् अजयप्रकाश महोदयः एते महोदयः अस्माकं वस्तुतः मार्गदर्शकाः येषां कुशलमार्गदर्शने एव प्रोत्साहनेन अपि वयम् एतानि कार्याणि कर्तुं सक्षमाः भवामः। महोदयानां हार्दिकं स्वागतं जायामः। इतोपि अस्माकं सम्मुखे विराजमानाः महान् विभूतयः विद्वांसः तेषामपि वयं भारतं स्वागतं व्याहरामः। डॉक्टर शशांक महोदयः, डॉक्टर विजयेश महोदयः, कनकलता महोदयः, प्रोफेसर टी के श्रीवास्तव महाभागाः, डॉक्टर शशिबाला महोदयः, प्रोफेसर आनंद श्रीवास्तव महाभागाः, प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी महाभागाः, डॉक्टर उर्मिला महाभागाः, प्रोफेसर मीता बनर्जी महाभागाः, प्रोफेसर विजय शास्त्री महाभागाः, अस्माकं विभागाध्यक्षः इलाहाबाद विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर उमाकान्त यादव महाभागाः, अपि च इलाहाबाद विश्वविद्यालयतः एव आगतवन्तः प्रोफेसर गिरि महाभागाः, राममणि पाण्डे महाभागाः, प्रोफेसर इतोपि अस्माकं सम्मुखे विराजमानाः मान्याः अतिथयः भवतां सर्वेषाम् अन्ये अपि ये प्रतिभागिनः सन्ति, ये अन्ये अपि उपस्थिताः महाभागाः विद्वांसः अत्र विराजन्ते, तेषां सर्वेषाम् अहं हार्दिकं स्वागतं जायामि। मैं संस्था का प्राचार्य होने के नाते आप सभी का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। अवसर इतना बड़ा है, इतनी बड़ी एकेडमिक फ्रेटर्निटी यहाँ उपस्थित है कि कई बार आपको लगता है कि अवसर के आप अनुकूल नहीं, जो स्वागत करने के लिए भी मिनिमम एलिजिबिलिटी तो होनी चाहिए ना, तो कहीं लगता है कि वो शायद मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है। जिम्मेदारी है संस्था का प्राचार्य होने के नाते। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली। मैं जब संस्थान में पहुंचा तो सर आ चुके थे। सर का बायोडाटा यहाँ से पढ़ा गया। सर कई अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं और बड़े विद्वान हैं, लेकिन मुझे लगा कि उनकी कर्मठता से भी सीखने की जरूरत है। वो 10 बजे उपस्थित थे और उनको जब ये लगा कि अभी इस
इसका उद्घाटन में थोड़ा टाइम लगना है, तो उन्होंने जो हमारे गंगानाथ झा साहब वैसे बैठे हैं ललित कुमार जी, उनसे कहा कि हम चलो समय का उपयोग कर लेते हैं, और जल्दी से वो गंगानाथ झा चले गए और पूरा समय का उपयोग किया। सर, आपकी विद्वता बच्चे नहीं, आपकी कर्मठता से भी हमको सीखना है। हमारे सारस्वत प्रोफेसर सुरेश पांडे जी, पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मैं किसी पांडे साहब के यहाँ रिसर्च करने के सिलसिले में अक्सर जाया करता था, एक प्रोजेक्ट में भी काम करता था उनके, और अक्सर सर आया करते थे और ज्योतिष वगैरह पे चर्चा होती थी। और जिस पांडे साहब नॉर्मली वो समय नहीं ज़्यादा देते थे, लेकिन सर आते थे तो पूरा सर की उपस्थिति का फायदा उठाते थे, ज्योतिष पर चर्चा होती थी सर की। और एक विद्वान जितने बड़े उससे बड़े विनम्रता उनमें भरी। सर, आपके आगमन से हम धन्य हैं। महाविद्यालय में आपका भी स्वागत है। आज हमारे जो हमारा गवर्निंग बॉडी है उसके अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र सिंह किसी कारण से नहीं आ सके, लेकिन ये महाविद्यालय उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के मार्गदर्शन से संचालित है। उनके अनुपस्थित में भी मैं उनको याद कर रहा हूँ। वो एक कार्यक्रम में आके हमारे 2-3 तारीख को, जिसके व्यस्तता के कारण वो समय नहीं निकाल पाए, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि अतिथियों से क्षमा मांग लीजिएगा और हमारी तरफ से भी सभी का स्वागत करेंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री शिवानंद जी, इनका नाम पोलिश में कुछ और है, जो आपने बरकुसी कुछ ऐसा सुना। मैं बैठा था तो आप आए, तो बड़ी किताबें आपने ट्रांसलेट की हैं, संस्कृत से पोलिश में भी कर रहे हैं, एक फाउंडेशन बनाया है और भारतीय संस्कृति को दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो एक्चुअल भारतीय संस्कृति के एम्बेसडर हैं विदेशों में, और हमारे सम्मान, हमको गौरव महसूस होता है जब आप लोग भारतीय संस्कृति की देश विदेश में फैलाने में। आपका भी सर बहुत स्वागत है हमारे महाविद्यालय में। दूसरी ओर से दिव्य प्रभा मैडम, जैसा भी आपने सुना कि ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ा है, मेटलर्जी और क्या मेडिसिन वगैरह पढ़ने के बाद फिर आपका ध्यान इंडोलॉजी की तरफ गया, और इंडोलॉजी में आपने महारत हासिल की और अब आप लगातार इस काम में लगी। मैडम, आपका भी हमारे कॉलेज में बहुत संगोष्ठी संयोजक SP सिंह साहब, महाविद्यालय के सबसे सक्रिय प्राध्यापकों में से हैं। इनका विभाग मुझे, जैसे महाविद्यालय में 21 विभाग, 21 डिपार्टमेंट्स, उसमें मुझे सबसे अच्छा विभाग कोई लगता है जिनका सबसे आपको इनके विभाग का कहीं गॉसिप करते नहीं दिखेगा पूरे महाविद्यालय में। सब विभाग में बैठे रहेंगे, विभाग में चर्चा करेंगे। SP सिंह साहब लगातार कार्यक्रम कराते रहते हैं, व्याख्यान कराते रहते हैं, उसमें शामिल रहते हैं। संस्कृत बोलने का एक पाठ्यक्रम चला रखा है इन्होंने। महाविद्यालय के लिए बहुत बड़े एसेट हैं, जुझारू आदमी हैं। आपको बधाई सर, आपने बड़ा कार्यक्रम इस सभागार में बहुत विद्वान उपस्थित हैं। कुछ लोगों को मैं शकल से पहचानता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ। श्री उमाकांत यादव साहब बैठे हैं, ललित कुमार त्रिपाठी जी बैठे हैं, हमारे अपने परम आदरणीय आनंद जी, ब्रजेश जी, शशांक जी, और सर आप लोगों का भी बहुत स्वागत है इस महाविद्यालय में। आप लोगों ने जो रास्ता दिखाया है,
आप लोगों ने जो नींव डाली है महाविद्यालय, तो मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी कोशिश। बहुत सारे आमंत्रित विद्वांजन हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से पधारे हैं। हमारे अपने महाविद्यालय के सम्मानित प्राध्यापकगण, शोधार्थी एवं प्रिय छात्र, आप सबका भी इस महाविद्यालय में स्वागत है। ये जो संगोष्ठी है, ये इसके लिए जब एसपी सिंह साहब ने हमसे कहा कि सर हमारे कॉलेज में पिछले 3-4 महीने से जैसे कहते हैं एक श्रृंखला संगोष्ठियों की चल रही है। पहले राजनीति विज्ञान विभाग में किया, अंग्रेजी विभाग में किया, इतिहास विभाग में किया, अब संस्कृत विभाग। सर ने कहा कि सब राष्ट्रीय संगोष्ठी से कर रहे हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे शक था उसमें कि होगी कि नहीं होगी, क्या होगा। मैं आज आपसे कहता हूँ कि सर ने जो है जो तय किया उसको पूरा किया, और वो बहुत मन से किया। इस महाविद्यालय में मैं आमंत्रित अतिथियों को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ महाविद्यालय में जो छात्र आते हैं अधिकांश रूरल या ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ बहुत शायद उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत कमिटेड और बहुत ही जिज्ञासु विद्यार्थी हैं हमारे। और अभी आपने देखा बड़े विनम्र भी हैं। आपको आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भगवान जाने क्या है, ऐसा पैर छुएंगे आपका, इतना सम्मान देंगे आपको कि आपको कई बार बौने होने का एहसास कराते हैं। तो इस महाविद्यालय में इस संगोष्ठी में पधारे सभी लोगों का मैं बहुत दिल से और बहुत कृतज्ञता भाव से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Eminent poet John Keats has written, "A thing of beauty is a joy forever." The joy is a feeling, it is a core element of happiness, and we derive happiness amply from literature, from music, and from various forms of performing and fine arts. To further enlighten us on this topic, our seminar's topic, and to formally welcome our guests, I would like to request Dr. S.P. Singh sir to come on the podium and share a few words. Dr. S.P. Singh sir. आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, सारस्वत अतिथि महोदय, मंचस्थ दिव्य प्रभाजी, प्राचार्य महोदय, सामने उपस्थित गणमान्य विद्वजनों, विद्यार्थियों तथा कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे दिमाग में समस्या या सबके दिमाग में समस्या रहती है कि कष्ट से छुटकारा कैसे मिले, निवृत्ति कैसे मिले। उस निवृत्ति को आनंद या अन्य शब्दों से हम लोग अभिहित करते हैं। उस आनंद तत्व के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई और हम लोगों ने विचार किया कि इस पर विचार विमर्श है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को कुछ आयोजन करना चाहिए। सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन हो चाहे आध्यात्मिक चिंतन का आधार बिंदु ये आनंद ही है। उसी को हम लोग सच्चिदानंद कहते हैं, वही सत्यम शिवम सुंदरम है। तो आनंद का प्रातिनिध्य हम सुंदरम में पाते हैं। वही सौंदर्य हम साहित्य में भी देखते हैं, विभिन्न नामों से उसको पुकारते हैं। जहाँ उपनिषद आनंदो ग्रहणे व्यजानात् आनंदाध्येव फलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम पर्यंत की संपत्ति थी। वही हम ये भी पाते हैं
कि यह आनंद ही साहित्य में रस के रूप में विद्यमान है। रस का स्वरूप आनंद स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप भी आनंद है। जो ब्रह्म हर पदार्थ में व्याप्त है, उसी तरह से रस भी सभी पदार्थों में व्याप्त है। सारे पदार्थ रसात्मक हैं, बशर्ते वो काव्य में जब उपलब्ध होते हैं समुचित शब्दों के द्वारा तो रस का परिपाक होता है। भक्ति रसामृत में एक बहुत सुंदर बात कही है, बोध निष्ठा यथाश्रमते सुख दुखादि हेतवः बोध निष्ठा तो सर्वे भी सुख मात्र हेतवः। जो बोधनिष्ठ भाव है वो अपने अपने स्वार्थ के कारण सुखात्मक दुखात्मक और महात्मक हो सकते हैं, लेकिन जो बोधनिष्ठ स्थायी भाव है वो सुखात्मक ही होता है। इसी आनंद को या इसी सौंदर्य तत्व को ऋषियों ने भी पहचाना, ऋषियों ने भी वही भाव है। उषा सूक्त में जिस तरह से उन्होंने उषा का वर्णन किया है, सौंदर्य के प्रति उनकी समुपासना व्यक्त होती है। ये आनंद हो या सुख हो, अन्यान्य शब्द हो सकते हैं। आलोचना हम सभी चार वाक्यों की करते हैं और व्यावहारिक रूप से प्राय हम सब लोग चार वाक्य होते हैं। चार वाक्य भी अपनी भाषा में उसको आनंद न कहकर सुख कहता है। वो सभी पदार्थों में सुख का अन्वेषण करता है और सांसारिक सुख में अपने को व्यस्त रखता है। उसका जो संशयवाद है उससे दर्शन का बहुत कल्याण हुआ है। कि उसका संशयवाद न होता तो हमारे दार्शनिक डॉगमेटिक हो गए होते। उसके हर जगह संशय उत्पन्न करने से ही उनके उत्तर देने के लिए दार्शनिकों ने कितना विचार मंथन किया, उसके लिए हम सब लोगों को चार वाक्यों के प्रति ऋणी होना चाहिए। और की जो भावना है वो आनंद नहीं कहते हैं, वो दुख की निवृत्ति को ही हम उसका आनंद मान लेते हैं और हर जगह दुख का अन्वेषण करते हैं। सब कुछ दुखात्मक है और इस व्यावहारिक जगत में हम सबको वैसा लगता नहीं, तो उनका दुख निवृत्ति भी हमारा आनंद ही है। इस प्रकार से अन्यान्य आनंद के विषयों में हम लोग चिंतन करेंगे 2 दिन तक और फिर हम उस प्रोसीडिंग का प्रकाशन करेंगे जो हमारे समाज के लिए हमारे लिए लाभदायक होगा। आप सब लोग इस गोष्ठी में आए, इस ज्ञान यज्ञ में आपने अपने आहुति डालने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, डालेंगे और हम लोगों को स्वास्थ्य के वचन देंगे। हम सब के आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महोदय। बीज वक्तव्य प्रदातुं अस्माकं प्रोफेसर् मान्याः प्रोफेसर् जोषिपाणिनः महोदयाः सन्ति। अहं निवेदयामि महोदय कृपया आज के संगोष्ठी का विषय है भारतीय वाङ्मय में आनंद। विषय तो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ हम सबकी समस्या आनंद नहीं है, हमारी समस्या है दुख। दुख निवृत्ति ही हमारी समस्या है। हमारी भी दार्शनिकों की समस्या यही थी। ईश्वर कृष्ण ने कहा है दुखत्रया विघाता, दुखत्रय की उसको चिंता है वो कैसे दूर हो। भगवान बुद्ध ने दुख ने भगवान बुद्ध सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया। जब वे वृद्धावस्था, रोग और शव यात्रा आदि को उन्होंने देखा तो उनको बड़ा संवेग हुआ। वो घर छोड़ के चले गए। अंत में उन्होंने जा रहे थे, सोचा कि अपने बच्चे का मुख देख दूं, तो उन्होंने कहा अगर देखूंगा तो बड़ा अंतराय हो जाएगा और हम चले गए। जब चले गए तो पिता ने उनसे कहा बेटा तुम्हारी ये उम्र संन्यास लेने की नहीं है,
तुम लौट आओ भी। संन्यास की तो बात तो होती है, अभी तुम्हारी नई अवस्था है, सुखभोग करो। उसने कहा पिताजी आपको अपने दुख की चिंता है, मुझे सारे संसार के दुख की चिंता है। मैं दुख पर ही तो रिसर्च करने जा रहा हूँ, ये दुख आखिर होता क्यों है, इसका कोई कारण भी होना चाहिए और इसका निवारण भी होना चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध को महाकारुणिक कहा जाता है। वो पूरे संसार के प्रति उनको करना है। तब उन्होंने जो फिर अंत में कहा दुखम दुख समुपादो दुखस्य च अतिक्रमम अरियम चट्टंगिकम मग्गम दुखोपशमगामिनम। आष्टांगिक इन चारों को चत्तारि अय सत्यानि सम्मम पर्याय पश्यति अथ निवृत्ति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। ये चार आर्य सत्य को जो सम्यक रूप से हृदयंगम कर ले वो दुख को समझ लेगा और यही विशुद्धि का मार्ग है। ये उन्होंने प्रैक्टिकल एडवाइस दी हर प्राणी के लिए, क्योंकि हमारे नैयायिक भी ये कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि दुख तो हर क्षण आने को तैयार बैठा है, क्योंकि तुम्हारा जो कर्म सिद्धांत है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भी कर्म सिद्धांत को बड़ा महत्व दिया है, इसलिए उन्होंने कहा कम्मस्य योनि कम्म योनि कम्मस्याहं यम कम्मं करिष्यामि पापकं वा पुण्यं वा तस्य दायादो भविष्यामादि अभिन्नं पच्चवेक्षितव्यं पब्बजितेन वा घट्टेन वा। प्रत्येक क्षण देखना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रवज्ञा लिया हुआ हो, कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। ये पाप कर्म उसमें भी सुख का को नहीं छोड़, दुख के साथ ही रहते हैं। इसे दुख प्रतिक्षण हो सकता है, इसे दुख को समझना चाहिए। ये उन्होंने कहा। नैयायिक मैं जयंत भट्ट की न्याय मंजरी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा सुख नहीं होता, सुख का नाम लेख भी नहीं है, सुख हमेशा दुख के साथ जुड़ा रहता है। सुख से अंतम दुखम, जहाँ सुख का अंत जरूर हो जाए और सुख के प्रति आदमी जल्दी उदासीन हो जाता है। अगर आपको कोई नियुक्ति मिली हो, अलग नियुक्ति हो मिली हो, तो हमेशा कोई धारावाहिक ज्ञान नहीं होता है मैं नियुक्त हो गया हूँ, नियुक्त हो गया, नियुक्त हो गया हूँ, ऐसा तो ज्ञान होता नहीं। धीरे धीरे उसके बाद दुख की उदासीन होने लगते हैं। लेकिन उस दुख के प्रति उदासीनता देर में होती है। किसी को इष्ट जन वियोग हो तो वो जो दुख होगा उसको सालता रहेगा जीवन भर, वो भूलता रहेगा कि जब जब याद आएगी तब तक उसको दुख होगा। लेकिन जब हम प्रोफेसर हुए थे, हमको बड़ी खुशी हुई थी, उस वक्त बड़े युद्ध के बाद प्रोफेसर हुए थे। लेकिन हम प्रोफेसर हो, हम प्रोफेसर हो, हम प्रोफेसर हो, हम हमने कहा धीरे धीरे हमारा वो सुख काफूर हो गया। अब तो याद भी नहीं आती कि हम प्रोफेसर थे। तो इसलिए सुख के प्रति यही मनुष्य की उदासीनता होती है, लेकिन दुख के प्रति उदासीनता कभी नहीं होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था दुख से निवृत्ति अपवर्ग, दुख निवृत्ति अपवर्ग, दुख से निवृत्ति होना ही अपवर्ग है। नैयायिकों का जो वेदांतियों का अपवर्ग है, शांकर वेदांतियों का, उसके लिए हमको कुछ प्रयास थोड़ी करना है, वो तो सिद्ध ही है, मोक्ष तो सिद्ध है ही, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तो हम है ही। बस एक अज्ञान के आवरण को हटाना है। अज्ञान के फौर में दुख वहां भी टांग अड़ाता है, और ऐसी टांग अड़ाता है कि दुख को हटाए नहीं हटता। हम समझते हैं अज्ञान का आवरण इतना आसान है कि पर्दे को हम हटाएं और ब्रह्मज्ञानी हो जाए। नहीं, ये पर्दा नहीं है, ये दुख जो है उस पर्दे को पर्दा नहीं आयरन कर्टन बना देता है, वहां से हटता ही नहीं वो। नहीं तो हम सब ब्रह्मज्ञानी न हो जाते, हम सुखी हो जाते, क्योंकि हमको अज्ञान के आवरण को हटाना ये इतना ही काम है, थोड़ा सा। हम जो है वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हम क्या है। इसलिए ये दुख जो है सर्वव्यापी है, दुख की निवृत्ति। तो उन्होंने कहा था कि दुख के कारण, दुख की निवृत्ति के लिए आत्मा जो है ये पाषाण कर्म हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में, अपवर्ग की अवस्था में पाषाण कर्म हो जाता है। मैं जब ग्रंथ पढ़ा रहा था आज से कोई 30-35 साल 40 साल पहले, तो उस वक्त मुझे विद्यार्थी
किया। वैसे मैं पढ़ाते समय विद्यार्थियों को पूछने के लिए कभी प्रेरित नहीं करता था। मैं कहता था कि क्लास मत पूछा करो, सेमिनार में तुम बोलना हम सुनेंगे, यहाँ मैं बोलूँगा तुमको सुनना पड़ेगा। तो उसने एकदम पूछ लिया कि साहब क्या ये पत्थर सब आत्मा मुक्त आत्माएं हैं? प्रश्न उसका ठीक था। मैंने कहा इस बात को न तुम जानते हो न मैं जानता हूँ, उतनी मैं भी जानता हूँ जितना तुम जानते हो, लेकिन ये केवल वो है, उपमान है। पाषाण तुल्य का मतलब ये नहीं कि पत्थर ही हो जाएगा, पाषाण के समान हो जाएगा। जैसे पाषाण को दुख की का अनुभव नहीं होता, वैसे ही अनुभवहीन दुख के अनुभवहीन हो जाएगा आत्मा, ये तात्पर्य है। तद्गत भूयो धर्मवत्तम तद्गत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यम, उसका धर्म उसमें है, साधारण धर्म उसमें है। दुख का अनुभूति का अभाव, दुख की अनुभूति का अभाव उसमें है, लेकिन वो पत्थर नहीं है, पत्थर के तुल्य हो जाएगा आत्मा, ये कहा गया था। सुख को आनंद से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सुख तो इंद्रियगत है, शोभनानि खानि अनेक सुखम खमन इंद्रिय, ये परांची खानी स्वयं उसमें आया है ना, विद्यार्थी ने पढ़ा होगा। खमन है इंद्रिय, जो इंद्रियों के लिए अनुकूल वैतरिक है वो सुख है, जो इंद्रियों के लिए प्रतिकूल वैतरिक है वो दुख है। लेकिन जो आनंद है उसका संबंध आत्मा से है। आनंद का बहुत बड़ा स्टोर हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन हम उससे दूर हट गए हैं, इसीलिए हम ये दुख ने हमको उससे दूर कर दिया है, इसीलिए हम बराबर दुखी रहते हैं। हम उसका भोग नहीं कर सकते, हम आत्मज्ञानी बन ही नहीं सकते। तो सुख को आत्मा से अलग करना चाहिए। इस आनंद की प्रतीति थोड़ी सी बाकी हमको मिलती है सुषुप्त अवस्था में, जहाँ पर इंद्रियां प्रसुप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ वक्त मन करता रहता है, तभी तो हमको यह अनुभूति होती है। सुखम हम अस्वापसम न च किंचित अवेदिशम, मैं सुखपूर्वक सोया, मुझे कुछ याद नहीं है। याद हो कैसे, जब इंद्रियां फंक्शन करें तो याद हो, और लेकिन सुखपूर्वक सोया ये अनुभूति हुई है। ये अनुभूति थोड़ा थोड़ा उस ज्ञान के समान है, बाकी और संसार में कोई अनुभूति ऐसी नहीं होगी। और दूसरी अनुभूति वो है जो काव्य रस की अनुभूति है। काव्य रस की अनुभूति बड़ी सुगम है, लेकिन दुर्गम भी है। काव्य से सबको रस नहीं होता, सबको रस की अनुभूति नहीं होती। काव्य रस में जो ब्रह्मानंद है, काव्य रस ब्रह्मानंद नहीं है, वो ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद सदृश है। जो सदृश होगा वो वैसा हो ही नहीं सकता कभी। तो जो सदृश वस्तु होगी उसमें उसका धर्म रहेगा, वो वैसा नहीं होगा। इसलिए काव्य का जो रस है, ब्रह्मानंद है, वो प्योर ब्रह्मानंद से फर्क है, क्योंकि काव्य में अंततो गत्वा आप अपने स्थाई को ही तो एंजॉय करेंगे, चरवना तो स्थाई भाव की होगी। तो यहाँ पर स्थाई से उपहित चैतन्य है, और जो ब्रह्मानंद है उसमें शुद्ध चैतन्य है। यहाँ स्थाई की उपाधि बनी रहेगी, इतना ही फर्क है, बाकी आनंद लगभग समान ही है। लेकिन जैसे ब्रह्मानंद पाने वाले ब्रह्म ज्ञान के लिए प्री कंडीशन है, सुरेश्वराचार्य ने कहा था, ना निरस्ते शरणाय च, ना विरक्ताय संसारा, ना निरस्ते शरणाय च। जो संसार से विरक्त नहीं हुआ है, जिसकी ऐषणाएं समाप्त नहीं हुई है, उसको ब्रह्म ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, वो उसको समझ ही नहीं सकता। तो ये दो कंडीशन तो बड़ी जरूरी है, संसार से विरक्ति हो और ऐषणाएं हमारी समाप्त हो गई हो। ऐसी ही कंडीशन काव्य रस के लिए भी है। काव्य रस का आनंद लेना कोई आसान नहीं है। काव्य रस के अधिकारी को भी
कोई पूर्व जन्म से सहृदयता नहीं आती। इस जन्म में आपको ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, काव्य नाटक आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तब जाकर सहृदयता आपकी होगी। ये शाम विनोद ने कहा है, ये शाम के काव्यानुशीलनाभ्यास वशा विशति भूते मनोमुकुरे वर्णी तन वही भवन योग्यता तैव सहृदय संवाद भागा सहृदया। काव्य के खूब अध्ययन करने के बाद जिसका मन रूपी दर्पण बिल्कुल निर्मल हो गया हो और जिसमें वस्तु के को तन्मय करने की, वस्तु के साथ तन्मय होने की क्षमता आ गई हो और जिसका हृदय कभी हृदय से बिल्कुल एक ही नए विलय में पहुंच जाए, वही सहृदय लोग हैं। ये सहृदय की यहाँ भी जैसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए बहुत आवश्यक है, अधिकारी को विद्वान ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसे हमारे यहाँ जो अधिकारी है काव्य रस का, वो सहृदय होना चाहिए। अब इस सहृदयता होने के बावजूद भी जैसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए सारी उपाधियां खत्म हो जाती हैं, ब्रह्म ज्ञान कहाँ ब्रह्मास्मि होगा तो ऐसे और कोई उपाधियां रहेंगी नहीं, यहाँ भी उपाधियां समाप्त होती है काव्य रस के लिए। उस उपाधि के समापन का कार्य करता है साधारणीकरण का सिद्धांत। बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है काव्य में। यद्यपि इसका प्रवर्तन तो किया था आनंदवर्धन ने नहीं किया था, आचार्य भट्टनायक ने किया था नवम शताब्दी अंत में। साधारणीकरण के द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होता है, अर्थात विषय और विषय दोनों का साधारणीकरण होता है। विषय जो है आपका स्थायी भाव और विषय है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इन चारों का जब तक साधारणीकरण नहीं होगा, इनकी विशेष उपाधियां समाप्त नहीं होंगी, तब तक रस का बोध ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ भी रस बोध के लिए भी वही कंडीशन है जो, और दूसरा तन्मयता होनी चाहिए और हृदय संवाद होना चाहिए। जो विषय आप पढ़ रहे हैं, जो पुस्तक काव्य पढ़ रहे हैं, उसके साथ आपका हृदय संवाद होना चाहिए। उस विषय के साथ हृदय संवाद को ऐसे समझिए जैसे कोई बालक, कोई जवान हो, वो उसमें क्रिकेट का मैच देख रहा हो, मोबाइल पर देख रहा हो, कहीं देख रहा हो, क्रिकेट का मैच देख रहा हो और पिता कहे बस रात दिन मैच देखते ही रहेगा, तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तू बनेगा नहीं, जा अपनी अम्मा को कथा चलने जा रही है, तुम भी वहीं जा राम कथा सुन, वहाँ बैठना। वो बेचारा जाता है राम कथा सुनने के लिए, लेकिन उसका हृदय संवाद बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ विसंवाद हो जाएगा। जब बाप का हृदय संवाद नहीं हो पा रहा है, सिर्फ माँ ही जा रही है उसके साथ, तो उसका हृदय संवाद ऐसी स्थिति में कभी भी रस का बोध नहीं हो सकता। इसलिए काव्य रस के लिए बड़ी जबरदस्त कंडीशन है, जैसे ब्रह्मज्ञानी की कंडीशन होती है। बस उसी काव्य रस में जो थोड़ी देर का अनुभव होगा, थोड़ी देर का होगा और ज़्यादा नहीं होगा, वही थोड़ा आपको ब्रह्मज्ञान के करीब ले जा सकता है। लेकिन दुख ये है काव्य का रस तो उतनी देर का होगा, विभावादि तीव्रतावधि होगा, और लेकिन उसका रस जो है ब्रह्मज्ञानी का तो न सब पुनरावर्तते, एक बार जब उसको हो जाएगा ज्ञान, फिर इस संसार की दशा में वो नहीं आ सकता। तो लेकिन काव्य के रस की जो साधारणीकरण है, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम विवाह आदि को देखेंगे, राम सीता आदि, शकुंतला दुष्यंत आदि को देखेंगे, तो उस वक्त हमको उसका जो स्थिति होगी वो साधारण रूप में होगी। सीता न सीता होगी ना असीता होगी, आपके बल्कि आपके रतिभाव को विभावित करने वाला व्यापार मात्र होगा। इसलिए इनको भी अलौकिक कहा गया है। तो रसास्वादय का भी अलौकिक स्तर पर पहुंचता है, जैसे ब्रह्मज्ञानी भी अलौकिक स्तर पर रहता है, लोकोत्तर स्तर पर चला जाता है। अब ये कहते हैं, जैसे इसके लिए एक श्लोक मुझे अगर याद आ जाए तो बताता हूँ। शाकुंतल के छठे अंक का श्लोक है, उसको अंगूठी मिल गई है दुष्यंत को, अब वो दुखी है, अंगूठी मिल गई, अब शकुंतला ले नहीं सकती, तो शकुंतला के लिए विरहातुर है दुष्यंत, बड़ा अच्छा उसको विरह
विरह के उसमें जो विरही है उसके 4 साधन होते हैं विरह विनोद के लिए। एक तो है स्वप्न दर्शन, उसको प्रियजन स्वप्न में दिखाई दे, या है सदृश वस्तु दर्शन, प्रियजन के सदृश वस्तु को देखना, और एक है प्रतिकृति दर्शन माने उसके चित्र को देखना, एक है तदंग स्पृष्ट स्पर्श, जो प्रियजन का जिसने स्पर्श किया है उस वस्तु का स्पर्श करना, ये उसके मनोविनोद का साधन है। जैसे यक्ष को अलकापुरी से आने वाली हवाएं बड़ी अच्छी लगती थी क्योंकि उसने उसकी कांता का स्पर्श किया होगा इस दृष्टि से। तो यहाँ पर दुष्यंत प्रतिकृति दर्शन करता है, शकुंतला के चित्र को बनाता है और उसको गौर से देखता है। उस चित्र को देखने में देखते 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 उसके आंख से आंसू टपक के चित्र में गिर जाता है। इस पर उसका पुत्र विदूषक कहता है गृहीता अनेन पंथा उन्मत्तानां, इसने तो पागलों का रास्ता अख्तियार कर लिया, कहीं अल्जाइमर का रोगी तो नहीं हो गया, ये क्या हो गया इसको। फिर एकदम वो साधारण धरातल पर उतर आता है दुष्यंत। जब उतर आया तब उसने कहा दुष्यंत ने दर्शन सुखम अनुभवतः तन्मय हृदय, मैं तन्मय हृदय से शकुंतला के दर्शन का परम आनंद प्राप्त कर रहा था। स्मृति का आईना कोया, याद दिलाने वाले हे मित्र तुमने पुनर्वि चित्रीकृता कांता, मेरी कांता को फिर चित्र बना दिया। क्या वो पहले चित्र नहीं था? पहले भी चित्र ही था। वो इस धरातल पर अब चित्रीकृता बने अभूत तद्भावित हुए है, बड़ा सिग्निफिकेंट जो प्रत्यय है इसमें। न चित्रम की चित्रम कृतम, उसके लिए पहले चित्र नहीं था, उसके लिए साक्षात प्रिया का दर्शन का सुख था, लेकिन अब जब याद दिला दिया तो फिर चित्र हो गया। यही जो स्थिति है दुष्यंत की, जो स्थिति है वो उस वक्त रस दशा में था, रस दशा की स्थिति में था। उसको चित्र नहीं दिख रहा था, उसको विभाव मात्र दिखाई दे रहा था शकुंतला। तो अब ये कह सकते हैं क्या दुष्यंत को रस की प्रतीति होगी? क्या नायक को भी रस की प्रतीति हो सकती है? प्रेक्षक को तो होती है, पाठक को तो होती है। इसके लिए अभिनव के गुरु भट्टतोष ने बढ़िया बात कही थी, नायकस्य कवेशोतु समानोनुभवस्तथा। नायक को रस की प्रतीति नहीं होती, ऐसा नहीं कह सकते। अगर वो डूबा हुआ है उस अभिनय में तो थोड़ी देर के लिए उसको भी रस की प्रतीति होगी, वो भी उस आनंद में डूब जाएगा। क्योंकि नायक माने जो नट आदमी है और कभी भी जब इतना तन्मयता से देखेगा उसको भी रस की प्रतीति हो सकती है, और श्रोता जो है उसको तो होगी। तो नायक से कवेशोतु समानोनुभवस्तथा, इस प्रकार ये रस की प्रतीति इसी स्थिति में होगी और थोड़ी देर के लिए होगी। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक आचार्य अभिनवगुप्त आनंदवर्धन के एक श्लोक से मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र के, काव्य सौंदर्य के अद्भुत दृष्टा आचार्य थे। उन्होंने कहा है, अंत में उनकी अनुभूति है, मैंने संसार को दोनों दृष्टियों से देखा और देखते 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 मैं थक चुका हूँ। मैंने कवियों की नूतन दृष्टि से देखा, कवि अपूर्व वस्तु का निर्माण करता है और पाषाण खंडवत जड़ बस संसार को सरस बना देता है, सरस ही नहीं बनाता, अपनी प्रतिभा से उसको भाषित भी कर देता है। ऐसा कवि की सृष्टि होती है। लेकिन वैज्ञानिक की सृष्टि जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही दिखाना, ये वैज्ञानिक का संसार है। और जो दार्शनिक का संसार होता है वो अपने तर्क और प्रमाण के द्वारा संसार को अपनी तरफ खींचता है, कोई दूसरी तरफ खींचता है, उसके भावों को कोई अपनी तरफ खींचता है, इससे उनमें परस्पर मतभेद भी होता है। कहते हैं या व्यापार
काचित कवीनां नवा दृष्टि या परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषाच वैपरीत्यति ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमनुचं निर्वर्णयन्तो वयं शान्ता नैव च लब्धमधिशयनं त्वद्भक्ति तुल्यं सुखम्। मैंने कवि की दृष्टि से संसार को देखा, दार्शनिक की दृष्टि से संसार को देखा, तो स्वयं कवि लिखे आनंद वर्धन, क्योंकि उनके लिए अभिनव ने कहा है सहृदय चक्रवर्ती खरवयं दर्शन को सहृदय चक्रवर्ती कहा था उन्होंने। मैंने कवि की दृष्टि से, दार्शनिक की दृष्टि से संसार को देखा। मैं देखते देखते अब थक चुका हूँ, लेकिन हे अतिशय, हे भगवान विष्णु, तुम्हारी भक्ति में जो मुझे सुख मिला वो कहीं नहीं मिला, न कवि की दृष्टि में मिला, न दार्शनिक संसार में मिला। यहाँ पर उनका भक्ति से मतलब है भक्ति रस। भक्ति में सुख नहीं है। कोई कहे कि आप गायत्री का पुरस्चरण कीजिए संतान की भलाई के लिए, अब 1 महीने तक आप कीजिए, लाखों बार गायत्री का जप कीजिए, 2 बार नहाइए, 1 बार खाइए। कोई आसान काम नहीं, बड़ा कठिन काम है। ये तो सब लोग न कर लेते। हर कर्मकांड बड़ा कठिन होता है, लेकिन उस कर्मकांड का जो रस है वो आनंददायी होता है। इसलिए भक्ति रस से उनका तात्पर्य है। इसीलिए कहा गया है हमेशा काव्य रस का झंडा ऊंचा रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि संसार विश्ववृक्षस्य द्वे फले अमृतो ममे काव्यामृत रसास्वादः आलापः संलापः सज्जनैः। तो 2 ही इतिहास है कि काव्यामृत का रसास्वाद हो या फिर सज्जनों के साथ हो। बस इतना ही मुझे कहना था। Thank you so much, sir. For enlightening us with your valuable lecture. जैसे उनको बोलना शुरू करें, नया क्लिप स्टार्ट कर दीजिए। वल्लभाचार्य ने बलिदाष्टकम में कहा है अपने आराध्य का वो स्वरूप बताते हैं अधरम मधुरम